وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابق صدر اور معزز سامعین کرام، میری تقریر کا عنوان ہے تقویٰ جنتی آئلی زندگی کی کنجی ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہامی مصرع ہے جسے آپ نے اپنے منظوم کلام میں یوں کہا ہے: ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اصلاح ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا۔ قرآن مجید اور احادیث سے ہمیں بار بار معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ اختیار کیا جائے۔ دراصل تقویٰ ایک ایسی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر انسان اپنے معبود حقیقی کے قرب کو پا لیتا ہے اور اپنی پیدائش کے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے تقویٰ پر بہت زور دیا ہے اور خدا تعالیٰ کے ہاں متقی کو سب سے زیادہ معزز اور مکرم قرار دیا ہے۔ قرآن آیت اسی مضمون پر دلالت کرتی ہے اور وہ متقین کے الفاظ اس کی ضرورت کو بیان کرتے ہیں۔ تقویٰ پر ساری زندگی کا دارومدار ہے۔ تقویٰ اختیار کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کو ڈال بنا لیتا ہے۔ ہر قسم کے خطرات، ہر قسم کے ظاہری و باطنی شر، فساد اور نقصان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے، کیونکہ صرف اللہ ہی وہ ذات ہے جو کہ ہر قسم کے نقصانات سے بچا سکتی ہے، اور وہی ہے جس کی امان میں آ کر انسان ہر قسم کی راحت اور سرور حاصل کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان اللہ مع الذین اتقوا۔ ترجمہ یعنی خدا ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، اور جن کا خدا ہو تو ان کے لیے باقی سب چیزیں ہل جائیں۔ تقویٰ اختیار کرنے سے خدا اپنے قرب کے نشانات انسان پر ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ آیت کریمہ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ کی تشریح میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں: جو متقی ہوتے ہیں ان کو اسی دنیا میں بشارتیں سچے خوابوں کے ذریعے ملتی ہیں، بلکہ اسے بڑھ کر وہ صاحب مکاشفات ہو جاتے ہیں، مکالمۃ اللہ کا شرف حاصل کرتے ہیں اور بشریت کے لباس میں ہی ملائکہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اسی مضمون پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں: ہماری جماعت کو چاہیے کہ تقویٰ کی راہوں پر قدم ماریں اور اپنے دشمنوں کی ہلاکت سے بجا خوش نہ ہوں۔ تو رات میں بنی اسرائیل کے دشمنوں کے بارے میں لکھا ہے کہ میں نے ان کو اس لیے ہلاک کیا کہ وہ بد ہیں، نہ اس لیے کہ تم نیک ہو، بس نیک بننے کی کوشش کرو۔ ہمارے مخالف جو ہیں وہ بھی متقی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر ہر چیز اپنی تفصیلات سے پہچانی جاتی ہے، صرف زبانی دعویٰ ٹھیک نہیں۔ اگر یہ لوگ متقی ہیں تو پھر متقی ہونے کے جو نتائج ہیں وہ ان میں کیوں نہیں؟ نہ مکالمہ الہی سے مشرف ہیں، نہ عذاب سے حفاظت کا وعدہ ہے۔ تقویٰ ایک سریاغ ہے جو اس کو استعمال کرتا ہے، وہ تمام زہروں سے نجات پاتا ہے، مگر تقویٰ کامل ہونا چاہیے اور اپنے آپ پر ناز نہیں ہونا چاہیے، جس نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان اللہ مع الذین اتقوا۔ خدا تعالیٰ کی معیت بتا دیتی ہے، خدا تعالیٰ کی معیت بتا دیتی ہے کہ یہ متقی ہے۔ تقویٰ کی یہ علامت ہے کہ اس سے انسان خدا تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا: لوگ بہت سے مصائب میں گرفتار ہوتے ہیں لیکن متقی بچائے جاتے ہیں، بلکہ ان کے پاس جو آ جاتا ہے وہ بھی بچایا جاتا ہے۔ مصائب کی کوئی حد نہیں۔ انسان کا اپنا اندر اس قدر مصائب سے بھرا ہوا ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ امراض کو ہی دیکھ لیا جاوے کہ ہزارہا مصائب کے پیدا کرنے کو کافی ہیں، لیکن جو تقویٰ کے قلعہ میں ہوتا ہے وہ ان سے محفوظ ہے، اور جو اس سے باہر ہے وہ ایک جنگل میں ہے جو خونخوار جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔ تقویٰ سے دراصل انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کا خود محافظ بن جاتا ہے۔ چنانچہ
حضرت مسیح موعود अलैहिस्सलाम ने इसकी यूं वजाहत फरमाई है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा, जो खुदा के आगे तकवा इख्तियार करता है, खुदा इसके लिए इस सारे तंगी और तकलीफ से निकलने की राह बना देता है। और फरमाया वो मुत्की को ऐसी राह से रिज़्क़ देता है जहाँ से रिज़्क़ आने का वहम गुमान भी नहीं होता। ये अल्लाह ताला की बातें हैं, और बातों के सच्चा करने में खुदा से बढ़कर कौन है। बस खुदा पर ईमान लाओ, खुदा से डरने वाले हर ज़ाया नहीं होते। ये एक वसी बिशारत है। तुम तकवा इख्तियार करो, खुदा तुम्हारा मुहाफिज होगा। मुत्की का एक अहम वसफ इस्तिकामत है। कामयाबी का दरमदार इस्तिकामत पर मौकूफ है। इंसान जब तकवा की राहों पर मजबूती से कदम मारता है तो मुखालफों पर भी इसका रोक पड़ता है। यही वजह है कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमन की विरासत से बचो, क्योंकि मोमन की विरासत तकवा की वजह से है। तकवा की वजह से इसे फरासत की वो दौलत मिलती है जो किसी और को मिलना नामुमकिन होती है, और इसी फरासत की बदौलत मुत्की के दिल में शर नहीं होता। जिस कदर इंसान मुत्की हो जाता है, इसी कदर वो किसी निस्बत खुदा को पसंद नहीं करता। मुत्की रिया और नुमाइश से दूर भागता है, क्योंकि नेकी को वो दिल की गहराइयों से करता है। हर वो काम जिससे फायदा पहुंचा हो वो करने के दर पे हो जाता है। हकीकी मुत्की खुदा ताला को हर हाल में मुकद्दम रखता है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस नुक्ता की यूं वजाहत फरमाई है, हकीकी मुत्की वो शख्स है कि जिसकी ख्वाब आबरू जाए हजार जिल्लत आती हो, जान जाने का खतरा हो, फिक्र फाका की नौबत आई हो, तो वो महज अल्लाह ताला से डर कर इंसाफ नुकसानों को गुवारा करता है, लेकिन हक को हरगिज़ नहीं छोड़ता। तकवा के भी मरातब होते हैं, और जब तक ये कामल ना हो तब तक इंसान पूरा मुत्की नहीं होता। जब तक इंसान खुदा ताला को मुकद्दम नहीं रखता और हर एक लिहाज को, का बरादरी का हो, का कौम का हो, का दोस्तों और शहर के रुखा का, खुदा ताला से तल्लुक को नहीं तोड़ता, और जब तक खुदा ताला के लिए हर एक जिल्लत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होता, तब तक वो मुत्की नहीं होता। अल्लाह ताला के कौल से और इसको राजी करने के लिए जो शख्स हर एक बदी से बचता है, इसको मुत्की कहते हैं। मुत्की वही है कि खुदा ताला से डर कर ऐसी बातों को तर्क कर दे जो मंशा इलाही के खिलाफ हो, नफ्स और ख्वाहिशात नफसानी को और दुनिया माफिया को अल्लाह ताला के डर से, अल्लाह ताला के मुकाबला में हेज समझे। सच्ची खुशहाली और अहद तकवा के बगैर नामुमकिन है। सच्ची खुशहाली और अहद तकवा के बगैर नामुमकिन है। खुशहाली का असूल तकवा है। इंसान की बड़ी से बड़ी ख्वाहिश दुनिया में यही है कि इसको सुख और आराम मिले, और इसके लिए अल्लाह ताला ने एक ही राह मुकर्रर की है जो तकवा की राह कहलाती है। अल्लाह ताला मुत्की को मकरूहात से ज़माना से बचाता है और हर एक मुसीबत में इसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है। अल्लाह ताला मुत्की को बेजा ज़रूरतों का मुहताज नहीं करता, बल्कि मुत्की को आइंदा जिंदगी यही दिखला दी जाती है। इन्हें इस दुनिया में खुदा मिलता हुआ नजर आता है और इनसे बातें करता है, क्योंकि अल्लाह ताला का फजल हमेशा इनके सामने हाल होता है। इसको जो मसाइब व तकालीफ आती हैं वो इसकी तरक्की का बायस बनती हैं। वो अल्लाह ताला के नज़दीक से नज़दीक तक होता जाता है, और अल्लाह ताला इसकी दुआओं को शब कबूलियत बख्शता है, जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है। तर्जुमा यानी अल्लाह ताला के दूर इसकी दुआएं कबूलियत के मर्तबा तक पहुंचती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बातें यहाँ तक महदूद नहीं रहती, बल्कि इनकी आकबत भी संवार देती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा को अल्लाह ताला के हजूर सुरखरू होंगे और जन्नत में इनका क़ियाम होगा, और आकबत में सबसे कारआमद जो चीज़ इनके लिए होगी जो इन्होंने दुनिया के सफर से आकबत के लिए ली होगी, यानी तकवा। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़ातेरा जो सबसे बेहतर और अफजल है वो तकवा है। तकवा की ज़रूरत और अहमियत का इससे भी अंदाज़ा होता है। कुरान मजीद का नज़ूल भी इसलिए हुआ कि दुनिया को तकवा की तालीम दी जाए,
जिसके ज़रिए वो हदायत के मंशा को हासिल कर सके। आयत कुरान ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन इसी हकीकत को बयान कर रही है। अपना मफरूज़ात हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से एक हवाला पेश करके अपनी तकरीर के इस पहले हिस्सा को जो तकवा की अहमियत के मुतल्लक है वो मैं मुकम्मल करूँगा, और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तकरीर के दूसरे हिस्से जो दो हिस्से हैं जिसमें एक तकवा की तारीफ शामिल है और आखिरी हिस्सा जो तकवा के हसूल के ज़राए पर मुश्तमिल है, इसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ बयान करूँगा। सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाते हैं कि मैं बच्चा था, जवान हुआ, जवानी से आज बुढ़ापा है, मगर मैंने कभी किसी मुत्की और खुदा तरस को भीख मांगते नहीं देखा और ना इसकी औलाद को दर बदर धक्के खाते देखा। ये बिल्कुल सच और रास्त है कि खुदा ताला अपने बंदों को ज़ाया नहीं करता और इनको दूसरों के आगे हाथ फैलाने से महफूज रखता है। मेरा इसको इत्काद है कि अगर एक आदमी बाखुदा और सच्चा मुत्की हो तो इसकी साथ कुछ तक भी खुदा रहमत और बरकत का हाथ रखता है और इनकी खुद हिफाजत फरमाता है। तकवा की ज़रूरत और अहमियत और इसको इख्तियार करने के बारे में मुतअद्दिद बार कुरान मजीद में हुक्म हुआ है, इसलिए इसको समझना नहायत ज़रूरी है। कुरान करीम में तकवा का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसके बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा तो इन्होंने जवाब दिया कि कांटों वाली जगह से गुजरो तो क्या करते हो? इसने कहा कि पहलू बचा बचा कर चलता हूँ। इन्होंने फरमाया इसी का नाम तकवा है, यानी इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी के मुकाम पर खड़ा ना हो, हर तरह इस जगह से बचने की कोशिश करे। गरज ये तकवा को इस्तारतन यूँ बयान किया जा सकता है कि इंसान किसी खारदार झाड़ी में से अपने कपड़ों को इस तरह समेट कर गुजरे कि कोई झाड़ या कांटा इसको चुभने ना पाए और ना ही इसके कपड़ों को चिमट जाए। तकवा के मानी खुदा ताला के खौफ के भी हैं, लेकिन इससे हर किसी ये मुराद नहीं कि इंसान खुदा ताला से इस तरह डरे जिस तरह किसी चीज से डरा जाता है, बल्कि खुदा ताला से खौफ खाने के ये मायने हैं कि इंसान को हर वक्त ये डर रहे कि वो कहीं अल्लाह ताला की मोहब्बत से महरूम ना हो जाए। गुलशन अहमदियत की साथ शाको और खुदा खुदा अहमद मुस्तफ़ा फ़ख्रुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों की रूह से इस ज़माना में कुछ नसीब ठहरने वालों इमामुल जुमा हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी तहरीरात में इस रूहानी खुदाइन को कुछ इस तरह बयान किया है। फरमाया तकवा के मायने हैं हर एक बारीक दर बारीक गुनाह से बचना। तकवा के दो दर्जे हैं, बदियों से बचना और नेकियों में सरगर्म रहना। फिर फरमाया तकवा इसको कहते हैं कि जिस अमल में बदी का शुबा भी हो इससे भी गुनाह ना करे, बुरे कामों से परहेज करे। तकवा इसका नाम नहीं कि मोटी मोटी बदियों से परहेज करे, बल्कि बारीक दर बारीक बदियों से बचता रहे। फिर फरमाया तकवा तो ये है कि बारीक से बारीक पलीदगी से बचे और इसके हसूल का ये तरीक है कि इंसान ऐसी कामल तदबीर करे कि गुनाह के किनारा तक न पहुँचे। फिर फरमाया सबसे पहले शिरक से बचो कि ये तकवा की इब्तदाई ईंट है। खुद पसंदी, माल हराम से परहेज और बदअखलाकी से बचना भी तकवा है। फिर फरमाया तकवा इस बात का नाम है कि जब वो देखे कि मैं गुनाह में पड़ता हूँ तो दुआ और तदबीर से काम लेवे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुत्की किस तरह बना जा सकता है। अल्लाह ताला ने बेशुमार ज़राए तकवा के हसूल के बताए हैं। अगर इन ज़राए पर इंसान अमल करे तो वो ज़रूर बेज़रूर एक दिन तकवा की राहों पर चलेगा। इन ज़राए में से एक ज़रिया रोज़े रखना है। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तर्जुमा है वो लोगों जो ईमान लाए हो तो पर रोज़े इसी तरह फर्ज कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। सूरह बकरा आयत नंबर 184। तकवा के क़याम में रोज़ों से इस तरह मदद मिलती है
कि इन दिनों चूंकि रोज़ों के साथ तहज्जुद का भी इंतजाम करना पड़ता है, इसलिए दुआओं और इबादत का ज़्यादा मौका मिल जाता है। नींद का बंदा खुदा ताला के लिए अपने आराम को छोड़ता है, खुदा ताला भी इसको अपनी तरफ खींचता है और इसकी रूह को ताकत बख्शता है। इसी वजह से कुरान करीम में मुत्की बनने के लिए रोज़ा को एक मुजर्रब नुस्खा बताया गया है, यानी अगर तुम इस नुस्खा पर अमल करोगे तो मुत्की बन जाओगे। आज के मौके पर की जाने वाली कुर्बानियाँ भी शायद अल्लाह में से हैं, इनका गोश्त खुदा ताला को नहीं पहुँचता। खुदा ताला को तो वही इखलास और तकवा पहुँचता है जिसके मतहत कुर्बानियाँ की जाती हैं। और इन कुर्बानियों की हिकमत ये है कि इनकी वजह से इंसानी कल्ब में तकवा पैदा हो। अगर इबादत इंसान में तकवा की रूह को पैदा करती हैं, अलगरज इबादत इंसान में तकवा की रूह को पैदा करती हैं और इसे जला बख्शती हैं। जैसा कि अर्शाद बारी ताला है, या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरह बकरा आयत नंबर 22। ऐ लोगों, तुम इबादत करो अपने रब की जिसने तुम्हें पैदा किया और इनको भी जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। रसूल तकवा का एक जरिया सिफ़ात इलाही का गहरा मुतालिया है। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तफ़सीर कबीर में तहरीर फरमाते हैं। बुखारी और मुस्लिम में रिवायत है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, यानी 100 में से एक काम। जो शख्स इनको खूब गिन रखे वो जन्नत में दाखिल होगा। और अल्लाह वितर है, और अल्लाह वितर है, वितर को पसंद करता है, यानी अल्लाह ताला भी एक और इसने अपने नाम भी 99 ही रखे हैं। इस हदीस का असल मतलब ये है कि सिफ़ात इलाहिया का गहरा मुताला इंसान को हकीकी मुत्की बनाता है। तकवा के मायने भी यही होते हैं कि इंसान अल्लाह ताला की सिफ़ात को अपने अंदर पैदा करे। जो शख्स अल्लाह ताला की सारी सिफ़ात को मद्देनज़र रखे वो किसी खूबी को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और जो शख्स हर खूबी को अपने सामने रखे और हर नेकी पर अमल करेगा, इसके यकीनी जनती होने में शुबा नहीं किया जा सकता। तकवा के हसूल के ज़राए में ये भी है कि हदूदुल्लाह का ख्याल रखा जाए। अर्शाद बारी ताला है, दिल का हदूदुल्लाह फला तक़रबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून। सूरह बकरा आयत नंबर 188। ये अल्लाह की हदूद हैं, बस इनके करीब भी ना जाओ। इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयात लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करता है ताकि वो तकवा इख्तियार करें। हज़रत खातमुल अंबिया सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि खुदाई अहकामात की अमली तस्वीर थे और हर आयत की मुकम्मल और खुली तशरीह थे। एक दफ़ा सहाबा कराम को इस अमर की तरफ तवज्जो दिलाते हुए फरमाया कि देखो, हलाल भी ज़ाहिर है और हराम भी, लेकिन इन दोनों के दरमियान कुछ मुश्तबे अमूर भी हैं जिन्हें अक्सर लोग नहीं जानते। बस जो शख्स इन मुश्तबे अमूर से बचा, इसने अपने दीन और अपनी आबरू को बचाने के लिए बड़ी हिजात से काम लिया। लेकिन जो शख्स इन मुश्तबे अमूर में जा पड़ा वो इस दरवाजे की मानंद है जो दरिया के पास अपना रेवड़ चला रहा हो और करीब है कि इसका रेवड़ दरिया के अंदर चला जाए। फिर आपने फरमाया, कौन खोल कर सुनो, हर बादशाह की एक रख होती है और अल्लाह ताला की ज़मीन में इसकी रख, इसकी हराम करदा चीज़ें। लिहाजा खुद की वो है जो अपने अमाल की हद बंदी करे, हराम और हलाल में इम्तियाज करे और हदूद के करीब भी जाने से मुजतनब रहे। फिर निकाह भी तकवा का एक जरिया है। कुरान करीम में शादीशुदा मर्द को मुहसन और औरत को मुहसना कहा गया है, अब जिसके मायने किला बंद हो जाने के हैं, जिसमें इस तरफ इशारा है कि निकाह का मकसद मर्द और औरत को शैतानी वसवास और शैतानी हमलों से महफूज रखना है। गोया तहफ़्फ़ुज़, इफ़्फ़त और तकवा शार जिंदगी का असूल निकाह के अहम मकासद में से है। तकवा का हसूल शायद अल्लाह की अज़मत बजा लाने से भी होता है। तकवा के हसूल के बारे में अब मैं हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक ऐसा हवाला पेश करता हूँ जो इस सिलसिला में बुनियादी हैसियत रखता है। फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है,
مجھے بتاؤ تو اس شخص کا حال جو اس دنیا میں حکومت الہیہ کا انکار کرتا ہے، اگر کوئی انکار کرے تو تم دیکھو گے کہ اسے کبھی سچا تقویٰ نصیب نہیں ہوگا۔ دنیا کے پردہ پر سچا تقویٰ سوائے خدا تعالیٰ کی بادشاہیت ماننے کے اور کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتا۔ جس کو پتہ ہوگا کہ خدا دنیا کے تمام معاملات میں دخل دے رہا ہے اور ہر کام کا وہ نتیجہ پیدا کرتا ہے، وہی بدی کرے گا کیوں؟ اور ہر کام کا وہ نتیجہ پیدا کرتا ہے، وہ بدی کرے گا کیوں؟ جتنا جتنا یہ یقین بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی انسان کے اندر تقویٰ بھی بڑھتا چلا جائے گا اور وہ بدیوں سے بچتا چلا جائے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے منظوم کلام میں اس کی طرف ہمیں یوں بھی متوجہ کیا ہے۔ تقویٰ یہی ہے یاروں کے نخوت کو چھوڑ دو، تقویٰ یہی ہے یاروں کے نخوت کو چھوڑ دو، کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو، اس بے ثبات گھر کی محبت کو چھوڑ دو، اس یار کے لیے راہ عشرت کو چھوڑ دو، چھوڑو غرور و کبر کے، تقویٰ اسی میں ہے، ہو جاؤ خاک مرضی مولا اسی میں ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رحمہ اللہ نے ایک دفعہ اپنے خطاب میں فرمایا کہ نئے آنے والوں کے استقبال کے لیے اپنے تقویٰ میں ترقی کریں۔ احمدیت نے لمبا سفر طے کرنا ہے، ذات راہ لے کر چلو، تمہارا ذات راہ تقویٰ ہے، ساری دنیا کو تقویٰ سے بھر دیں۔ نیز فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیز فرمایا قرآنی آیات کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں تقویٰ سے مراد ابتدائی انسانی فطرت میں ودیت شدہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ دراصل دل کی سچائی کا دوسرا نام ہے۔ سچائی کا مضمون تقویٰ کے راز سے تعلق رکھتا ہے، بغیر سچائی کے تقویٰ قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنوں کو یہ دعا سکھائی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 75۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں اپنے جیون ساتھیوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ ایک مومن کو یہ بات ذہن میں رکھ کر دعا کرنی چاہیے کہ اے ہمارے رب، جب ہم اپنی اولادوں کو اس دنیا میں چھوڑ کر تیرے حضور حاضر ہوں تو ہماری اولادیں تقویٰ پر قائم ہوں اور اپنے آبا کی نیکیوں پر عمل کرتے ہوئے ان کی نیکیوں کے تسلسل کو جاری رکھنے والی ہوں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا، قومی نیکیوں کے تسلسل کے قیام کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس قوم کے بچوں کی تربیت ایسے ماحول اور ایسے رنگ میں ہو کہ وہ ان اغراض اور مقاصد کو پورا کرنے کے اہل ثابت ہوں جن اغراض اور مقاصد کو لے کر وہ قوم کھڑی ہوئی ہو۔ کسی بھی قوم یا جماعت کی ترقی کا انحصار اس کی اگلی نسل پر ہوتا ہے۔ اگر نئی نسل کی تربیت کا انتظام ایسے رنگ میں ہو تو وہ نسل مستقبل میں اپنے پہلوؤں کے کام کو جاری رکھنے والی ہوگی اور اس کے کاموں کو ترقیات کے راستے پر گامزن کرنے والی ہوگی۔ ہمارے پیارے آقا و حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کے لیے بچپن کا زمانہ بہترین قرار دیا ہے۔ بچپن سے ہی نئی نسل کے دماغوں میں یہ نقوش قائم کر دیے جائیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام احمدیت کی تعلیم اور نمونوں کو دنیا میں رائج کرنا ہے اور خلافت کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں قائم کرنا ہے، تو وہ زندگی کے کسی حصے میں اپنے مقصد کو نہیں بھولیں گے۔ غرض بچپن کی عمر میں سیکھی ہوئی باتیں اور اعمال آئندہ بھی پختہ طور پر زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچپن میں سیکھی ہوئی بات پتھر پر لکیر کی مانند ہوتی ہے جو مٹ نہیں سکتی اور اس کا نقش دیر تک قائم رہتا ہے۔ اس حدیث کی مزید وضاحت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس اقتباس سے ہوتی ہے۔
फरमाया दीनी उलूम की तहसील के लिए तफूलियत का ज़माना बहुत ही मुनासिब है और मौजू है। तफूलियत का मुहावजा बहुत तेज होता है। इंसानी उम्र के किसी दूसरे हिस्से में ऐसा हादसा कभी भी नहीं होता। मुझे बचपन की बातें अब तक खूब याद हैं, लेकिन 15 बरस पहले की अक्सर बातें याद नहीं। इसकी वजह ये है कि पहली उम्र में इल्म के नकूश ऐसे तौर पर अपनी जगह कर लेते हैं और तौबा की नशोनुमा की उम्र होने के बाद ऐसे दिल नशीन हो जाते हैं कि फिर ज़ाया नहीं कर सकते। गलत ये एक कबीर अमर है। मुख्तर ये कि तलीमी दौर में इस अमर का ख़ास लिहाज और तवज्जो चाहिए कि दीनी तालीम इब्तिदा से हो, और मेरी इब्तिदा से यही ख्वाहिश रही है और आप भी है। अल्लाह ताला इसको पूरा करे। अगर मुसलमान पूरे तौर पर अपने बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो ना करेंगे तो मेरी बात सुन रखें कि एक वक्त इनके हाथ से बच्चे भी निकल जाएंगे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बच्चों की तालीम और तरबियत की ख्वाहिश इस रंग में पूरी हुई कि हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए एक तंजीम कायम फरमाई और इसका नाम अत्फालुल अहमदिया रखा, और बच्चियों की तंजीम नासरातुल अहमदिया के नाम से कायम हुई। 26 जुलाई 1940 को हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत खुदामुल अहमदिया को ये इरशाद फरमाया कि एक महीने के अंदर खुदामुल अहमदिया 8 से 15 साल की उम्र तक के बच्चों को मुनज़्ज़म करे और अत्फालुल अहमदिया के नाम से इनकी एक जमात बनाई जाए और मेरे साथ मशवरा करके इनके लिए मुनासिब प्रोग्राम तजवीज़ किया जाए। अत्फालुल अहमदिया की तंजीम का एक मकसद ये है कि नेक कामों में एक दूसरे की नस्ल का मादा जमात में से ज़्यादा पैदा हो और बचपन से ही इनके ये बात बच्चों के ज़हनों में पुख्ता हो जाए कि हमारी हर ज़रूरत को अल्लाह ताला ने पूरा करना है। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से लाखों बच्चों की अत्फालुल अहमदिया की तंजीम के ज़रिया तालीम व तरबियत हो रही है और यह हज़रत मौऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक शानदार कारनामा है जो जमात अहमदिया पर एक एहसान अज़ीम है। हदीस है कि बच्चा 7 बरस का हो जाए तो इसको नमाज पढ़ने की तस्लीम करो, जब 10 साल का हो जाए और नमाज से बेरग़बती दिखाए तो हल्की फुल्की सजा भी दो, क्योंकि जो बच्चा खुदा से जुड़ जाएगा वो दुनिया में कभी नाकाम नहीं होगा। चुनांचे अत्फालुल अहमदिया में 3 आदतों का होना ज़रूरी है। अगर ये 3 आदतें इनमें पैदा करती जाएँ तो यकीनन जवानी में ऐसे बच्चे बहुत कारआमद और मुफीद साबित हो सकते हैं। खास बच्चों में मेहनत की आदत पैदा की जाए, सच बोलने की आदत पैदा की जाए और नमाजों की बाकायदगी की आदत पैदा की जाए। नमाज के बगैर दीन कोई चीज़ नहीं। अगर कोई कौम चाहती है कि वो अपनी आइंदा नस्लों में इस्लाम की रूह कायम रखे तो इसका फर्ज है कि वो अपनी कौम के हर बच्चे को नमाज की आदत डाले। इसी तरह सच के बगैर इखलाक दुरुस्त नहीं हो सकते। जिस कौम में सच नहीं, इस कौम में इखलाक़े फाज़िला भी नहीं और मेहनत की आदत के बगैर सियासत और तमद्दुन भी नहीं। गोया ये 3 मियार हैं जिनके बगैर कौमी तरक्की नहीं होती। अगर ये 3 आदतें इनमें पैदा कर दी जाएं तो यकीनन जवानी में ऐसे बच्चे बहुत कारआमद और मुफीद साबित हो सकते हैं। बस बच्चों में मेहनत की आदत पैदा की जाए, सच बोलने की आदत पैदा की जाए और नमाजों की बाकायदगी की आदत पैदा की जाए। नमाज के बगैर इस्लाम कोई चीज़ नहीं। अगर कोई कौम चाहती है कोई नस्लों में इस्लामी रूह कायम रखे तो इसका फर्ज है कि अपनी कौम के हर बच्चे को नमाज की आदत डाले। हदीसों में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह मेरे नफ्स को इसका तकवा अता कर और इसको खूब पाक साफ कर दे, और तू ही सबसे बेहतर है जो इसको पाक कर सके। दिल भी अल्लाह ताला के फजल से भी पाक हो सकता है। मोहतरमीन, हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम इस सफ़र का आगाज़ सच्चाई से करें। अल्लाह ताला करे कि हम सब हमेशा सच बोलने, सच पर कायम रहने और सच्चों के साथ रहने की तौफीक पाएँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने दिलों को पाक साफ करने की तौफीक अता फरमाए। जिंदाबाद।
سے آ رہی ہے. یہ بغیچے جو خلافت کی قیادت کی کل قرآن مخالفت کرتے تھے اور جماعت کے ارکان نے فرقہ